Hello learners, this is Sunil Vishwakarma and today I am going to tell you how to crack questions based on loop. This is my third video on how to crack question based on loop. In this video I am going to show you how to crack question based on these two conditions. First one is find the output and the second one is how many times the loop will be executed. In previous video I had deal with a problem based on while loop and there is only one print statement under while statement. Only one print statement and only one any expression. Now in this video I am going to show you how to deal if there are more than one print statement and more than one expression. See, like this question is different from the above one. See, there is only one print statement and one expression. In this question there are two print statement and two expressions and 3 variables. Here one variable only. Okay, now let's start how to crack this type of question. Just going to copy it, then paint, paste. Okay. How to crack this type of question? As the same idea, just divide your question into 4 parts. First one is for your control loop variable. पहला पार्ट या पहला सेगमेंट उसके लिए होगा जो आपका कंट्रोल लूप वेरिएबल होगा. नाउ पहले भी मैं बता चुका हूं कि कंट्रोल लूप वेरिएबल को फाइंड आउट करने के लिए इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कंट्रोल लूप वेरिएबल जस्ट लुक एट द वेरिएबल near to while statement. This is near to while statement or comes with while statement. This I comes with while statement and this is your control loop variable, not this one, because this is for condition variable value of condition and this is your operator and this whole become condition. This is a control loop variable and this is operator and this is value for your control loop variable. Okay, our control loop variable is I and the initialization of I is 5. Initialized value is 5. Now condition 50. Okay, let's start. First section is for control loop variable CV, that is our I. Second for condition, that is condition I less than n. Third statement inside the loop, st inside the loop. The last one, statement outside the loop. This is statement outside the loop.
st outside the loop. और इसी में एक और हम पार्ट कर देते हैं, जस्ट योर प्रिंट. व्हाट टू प्रिंट, क्या प्रिंट करना है हमको? प्रिंट करना i और क्या प्रिंट करना है s. ठीक है, बट ये भी ध्यान में रखना है कि ये आउटसाइड द लूप है या इनसाइड द लूप है. वो कैसे देखेंगे? अगर इस लाइन पे ये जो आ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड इनसाइड, वाइल के इनसाइड. अगर वाइल के पैरेलल ये आ रहा है, इट मीन्स इट्स आउटसाइड ऑफ द लूप. दिस इज कॉल्ड इनसाइड एंड दिस इज कॉल्ड आउटसाइड. अगर पैरेलल में आ रहा है तो आउटसाइड. तो स्टेटमेंट आउटसाइड द लूप. That is our S. तो control loop variable starting is 5. Starting is 5. Check your condition. Condition is I. It means 5. Sorry, I less than n, and here n is 50. यहाँ पे मैंने i की वैल्यू क्यों नहीं लिखी? क्योंकि पर लूप पे i की वैल्यू चेंज होती रहेगी. नाउ स्टेटमेंट इनसाइड द लूप और से व्हाट टू प्रिंट. स्टेटमेंट इनसाइड द लूप, s प्लस इक्वल टू i. इसका मतलब होता है इट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस वन, s इक्वल टू s प्लस i. ये शॉर्ट फॉर्म हो गया इसका. और i प्लस इक्वल टू 10 का मतलब होता है i प्लस 10 इक्वल टू 10 का मतलब होता है i इक्वल टू i प्लस 10. ओके, ये इनके मतलब होते हैं. ठीक है, ये इनके मतलब होते हैं. तो मैं डायरेक्टली इसको मैं लिख रहा हूं यहां पे. तो पहला स्टेटमेंट है s इक्वल टू s प्लस i. दूसरा स्टेटमेंट है i इक्वल टू i प्लस 10. तीसरा स्टेटमेंट है प्रिंट i. प्रिंट ये स्टेटमेंट है लूप के अंदर. नाउ व्हेन i इक्वल टू 5, इनिशियल वैल्यू 5, कंडीशन चेक कराइए. 5 लेस देन 50, कंडीशन ट्रू. और जैसे ही कंडीशन ट्रू होगा, स्टेटमेंट इनसाइड द लूप विल एग्जीक्यूट. क्या एग्जीक्यूट होगा? पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. क्या स्टेटमेंट है? s इक्वल टू s प्लस i. s की इनिशियल वैल्यू 0 प्लस 5 की इनिशियल वैल्यू, i की इनिशियल वैल्यू 5. हियर s बिकम 5. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट है i इक्वल टू i प्लस 10. i की इनिशियल वैल्यू 5. प्लस 10. Here I becomes 15. प्रिंट क्या कराना? I 15. ठीक है. अब नेक्स्ट टाइम जब लूप चला, क्योंकि ये आउटसाइड द लूप है, तो इसके ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा. जब तक लूप चलता रहेगा तब तक अंदर स्टेटमेंट होंगे और ये लास्ट में प्रिंट होगा. व्हेन i की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गई 15, तो यहाँ पे जाके कितना हो जाएगा? 15. जब फर्स्ट टाइम लूप चला i की वैल्यू 5, सेकेंड टाइम लूप चला तो i की वैल्यू 15. कंडीशन चेक कराइए. 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 50, कंडीशन ट्रू. ये स्टेटमेंट फिर से एग्जीक्यूट हो जाएगा, यही वाला स्टेटमेंट
s इक्वल टू s प्लस i। पर लूप में जब इनिशियल वैल्यू चेंज हो रही है तो ये वैल्यूज भी चेंज होंगी, जस्ट बिकॉज क्योंकि s की वैल्यू कितनी आ गई थी हमारे पास प्रीवियस में 5, प्लस i की वैल्यू कितनी है करंट में 15 इक्वल टू 20। ये हो गई s की वैल्यू। अब हमें i की वैल्यू फाइंड आउट, क्योंकि ये स्टेटमेंट है ना पर लूप के लिए, तो i इक्वल टू i प्लस 10। हियर i की वैल्यू 15 करंट वैल्यू, और कितना ऐड करना है 10 इक्वल टू 25। और प्रिंट क्या करना है i, तो i की वैल्यू कितनी 25। प्रिंट i की वैल्यू कितनी है 25। ओके, नेक्स्ट टाइम जब लूप चला थर्ड टाइम, i की वैल्यू 25, कंडीशन चेक कराइए 25 लेस देन 50, कंडीशन ट्रू, तो सेम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे बट विथ न्यू वैल्यू s इक्वल टू s प्लस i। हियर previous value of s is 20, and current value of i is 25। यहाँ हम करंट वैल्यू क्यों ले रहे, क्योंकि लूप पर लूप पे इसकी वैल्यू चेंज हो रही है i की वैल्यू। जैसे पर लूप पे s की वैल्यू चेंज हो रही है तो हम यहाँ रख रहे हैं, पर लूप पे i की वैल्यू चेंज हो रही है, यहाँ तो चेंज नहीं हो रही है ना, आपकी प्रीवियस वैल्यू चेंज हो चुकी है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये आ गया। तो 20 प्लस 25 बिकम्स 45। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है इसके अंदर का, i इक्वल टू i प्लस 10। i की वैल्यू कितनी है हमारे पास, दिस वन 25, चाहो तो यहीं से उठा लो क्योंकि ये करंट वाली ही है, तो 25 प्लस 10 इक्वल टू 35। नाउ नेक्स्ट टाइम जब लूप चला, फोर्थ टाइम लूप चलना स्टार्ट हो गया, अब 35, कंडीशन चेक कराइए 35 लेस देन 50, कंडीशन ट्रू, सेम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। स्टेटमेंट दिस s प्लस i, इसकी वैल्यू बिठा दीजिए यहाँ पे, s की वैल्यू 45, i की वैल्यू चाहो तो यहाँ से उठा लो, चाहे क्योंकि ये यहीं घूम के आ रहा है, 35 becomes 50 to 80। okay, now i की वैल्यू नहीं निकाली अभी, i इक्वल टू i प्लस 10, i की वैल्यू 35 प्लस 10 इक्वल टू 45। प्रिंट क्या, यहाँ पे हमने प्रिंट नहीं कराया, प्रिंट i, तो i क्या है यहाँ पे 35, ये प्रिंट क्या कराना 45, प्रिंट i, तो i क्या है 45। नाउ नेक्स्ट टाइम जब लूप चला, नेक्स्ट टाइम जब लूप चला फिफ्थ टाइम, i की वैल्यू 45, check your condition 45 less than 50, condition true, same statement s equal to s plus i,
s की वैल्यू 80 प्लस i की वैल्यू 45 becomes 20, 25 x 125. Now calculate I equal to I plus 10. I की वैल्यू 45 plus 10 becomes 55. प्रिंट क्या कराना है और क्या स्टेटमेंट है अंदर? प्रिंट है. प्रिंट I. तो I कितने हमारे पास? 55. नेक्स्ट टाइम जब लूप चला 6th टाइम, तो ये 55, चेक योर कंडीशन, 55 कंडीशन फॉल्स. तो यहां पे ये फॉल्स हो गया. और जैसे कंडीशन फॉल्स हो जाती है, इन अंदर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होते. ठीक है, अंदर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होते, सीधा कहां चला जाएगा? प्रिंट स्टेटमेंट आउटसाइड द लूप. एंड वी हैव स्टेटमेंट आउटसाइड द लूप इज प्रिंट सम और से s. तो s की वैल्यू कितनी है हमारे पास लास्ट टाइम पे? हियर 125. प्रिंट s, हाँ, दैट इज 125. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जब यहाँ पे 6 टाइम पे जब लूप की वैल्यू, लूप कंट्रोल लूप वेरिएबल की वैल्यू 55 हो गई और यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गया, तो अंदर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुए. फिर कहाँ का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा? जो है लास्ट वाला स्टेटमेंट है आउटसाइड द लूप, एंड दैट इज प्रिंट s. s की वैल्यू अब हमें फाइंड आउट करनी है. हियर s, यहाँ पे s की वैल्यू 5 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 125 है. लास्ट मतलब लास्ट वैल्यू क्या है? 125 है. तो यहाँ पे s की वैल्यू कितनी आ गई? 120. सॉरी, लास्ट लूप पे है ना, यहाँ पे 125. सो s की वैल्यू 125. नाउ हम 3 चीजें इसमें सॉल्व आउट कर सकते हैं इस एनालिसिस के थ्रू. फर्स्ट, वैल्यू ऑफ i कितनी हो गई है? वैल्यू ऑफ i, अगर वैल्यू ऑफ i हम देखें तो ये पर स्टेटमेंट में प्रिंट हो रहा है, पर लूप पे प्रिंट हो रहा है. इट मींस फर्स्ट टाइम i की वैल्यू, तो आंसर इस तरह से आएगा i इक्वल टू 5. देखो i इक्वल टू है ना, तो ये प्रिंट के अंदर i इक्वल टू है, तो i इक्वल टू 5. नेक्स्ट टाइम पे i की वैल्यू जब 15 हुई, तो यहाँ पे जब उसको प्रोसेस किया गया कंडीशन ट्रू होने के बाद, तो i की वैल्यू कितनी हो गई? 25, क्योंकि ये प्रिंट हो रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे ये प्रिंट हो रहा है, इस जगह पे ये प्रिंट हो रहा है. देखिए सेकेंड टाइम जब लूप चला, ये एग्जीक्यूट हुआ, ये एग्जीक्यूट हुआ, तो प्रिंट स्टेटमेंट भी तो एग्जीक्यूट होगा, तो कितनी वैल्यू? 25. फिर नेक्स्ट टाइम पे i की कितना है? 35. तो i इक्वल टू 35. नेक्स्ट टाइम पे i इक्वल टू 45. i इक्वल टू 45. नेक्स्ट टाइम पे i इक्वल टू 55. i इक्वल टू 55. सी, यहाँ पे i की वैल्यू प्रिंट हो चुकी है. जैसे यहाँ पे चेक किया कंडीशन फॉल्स, और जैसे कंडीशन फॉल्स हुई लास्ट स्टेटमेंट क्या है? दिस वन. तो प्रिंट s सम ना, तो ये कैसे लिखा है? सम लिखा है, इक्वल टू लिखा है, तो क्या लिखेंगे?
sum इक्वल टू s की वैल्यू, और s की वैल्यू कितनी है 125. दिस इज योर आंसर. एक और क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स विल द फॉलोइंग लूप एग्जीक्यूटेड. कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ? फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम. सिक्स्थ को इसलिए इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई थी, तो 6 बार वो रन ही नहीं हुआ. 6 पे कंडीशन चेक हुई लेकिन वो रन नहीं हुआ. ठीक है, तो ये कितना लूप कितने बार एग्जीक्यूट हुआ? लूप रन्स 5 टाइम्स. लेट्स सपोज यही प्रिंट स्टेटमेंट अगर अंदर होता है, यहां पे यही प्रिंट स्टेटमेंट अगर अंदर होता है यहां पे, ठीक है, तो ये भी बार बार प्रिंट होता, तो ये भी बार बार प्रिंट होता. इसका मतलब है कि आंसर कैसे आता है फिर? इसी के जस्ट नीचे सम इक्वल टू कितना 50. फिर यहाँ पे सम इक्वल टू 20, सम इक्वल टू 45, sum equal to 80, sum equal to 125. See, sum equal to 125. आ गया. फिर ये नहीं प्रिंट होता क्योंकि ये आउट इनसाइड द लूप हो जाता. ओके स्टूडेंट्स,